Dear students, today we are going to read one of new chapter. The name of the chapter is Subject Verb Agreement. So you can open your book at page number 96. So first of all, let me write down the name of the chapter at the board. So subject verb agreement. So this is our chapter name. So subject, if we talk about these three words, so what is the meaning of subject? Do you know anyone? In our class, many students are here present. So would you like to tell me, anyone of you, that what is subject? Okay, don't worry at all. I would like to tell you what is subject. So first of all, we should know that doer of action, is called subject. Now you got it. Now have you understood? Now it's okay. Now you have understood this thing, that what is the subject? Means subjects are what? Subjects are the words. Yeah, subject you can say subject can be what? That is who is doer of any action. Suppose that here the teaching is going on. Okay, teaching is an action. So who is teaching here? I. So I will be here what? Okay. And who is reading here? You reading. So reading is action. So who is doing reading? So you are doing reading, na? So that's why you will be here what? Subject. So I hope you are clear now. What is it? Now simply we will learn about this word. So would you like to tell me, anyone, that what is verb? Okay, don't worry, I will learn. So verb is a action word. Verb is a action word. You can say action words are called verb. Okay, like go, teach, smell. Means in our English book, uncountable words are written. In first page you will notice that more than hundreds words are written. If we try to count, thousands words are written in the book. But any word of English which will reflect, which will convey the meaning of action, that will be called verb. Okay. So now I would like to talk about this word agreement, because if we don't know the meaning of agreement, so we cannot understand the basic concept of this chapter. This chapter is very important point of view in the upcoming higher classes also. When you will be in the 10th also, you will also read this same lesson. Subject verb concord, it is also called. When you go in higher classes, what will happen there? You will learn, you will study a chapter. The name of the chapter will be what? Subject verb concord. But here it is written subject verb agreement. Means subject verb agreement. If we say that this is the subject verb agreement, it's okay. If I say that subject verb concord, it is also okay. Means they have same meaning and same knowledge. Okay. Agreement. Do you know, anyone, what is the mean? What means agreement word? Agreement means in Hindi सहमति means
when our subject and verb agree to each other, that kind of knowledge we will learn here. मतलब इस तरीके का नॉलेज में इस चैप्टर में मिलने वाला है कि आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट्स आर डिफाइंड इन द नंबर, सब्जेक्ट्स आर डिफाइंड इन द नंबर। लाइक आप अगर देखेंगे तो मतलब सब्जेक्ट हमारे कैसे होते हैं, दे आर सिंगुलर एंड दे आर समटाइम प्लूरल। तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है इट मस्ट एग्री टू इट्स वर्ब, यही सीखना है। मतलब जो सब्जेक्ट हमारा होगा इफ इट एग्रीज इट्स वर्ब देन इट बिकम्स व्हाट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब सब्जेक्ट का एग्रीमेंट होना है किससे, वर्ब से। सो दैट काइंड ऑफ नॉलेज इज हियर, दैट इज द मीनिंग ऑफ होल चैप्टर। मतलब ये टॉपिक का मतलब है, मतलब जब वर्ब सब्जेक्ट से एग्री करे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, और जब सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग एग्री करे तो इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आई होप क्लियर। मैं अब आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा, आपकी बुक में लिखा भी हुआ है दैट जया एंड जेनी आर इन द क्लास। ओके, सो आई वुड लाइक टू राइट हियर फर्स्ट ऑफ ऑल, if you don't know these things well, you can write down here at the top of the page. First example is written here, Jaya and Jenny are in my class. Here in this sentence we are talking about Jaya and Jenny. So any sentence, उस सेंटेंस में अगर हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं that is also known as subject. Any doer of action, वो भी सब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं that is also subject. So here we are having subject Jaya and Jenny. हमें ये भी पता है वन सिंगुलर प्लस वन सिंगुलर बिकम्स वन सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वन सिंगुलर सब्जेक्ट इज इक्वल टू प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, व्हेन वी ऐड वन सिंगुलर सब्जेक्ट व्हेन another with the when we are having one singular and if we add another one singular, so it becomes what, plural subject. So if we talk about the verbs, we have studied that we are having three verbs like is and am and are. These are the three verbs, these are the helping verbs. So is here what, this is singular verb, and am is used with the I always, and are is here what, this is plural verb, right? So one singular and Jaya and Jenny means one singular is equal to plural, means our subject is now here what, this is a plural. So what kind of verb we will use here, are. Why? Because it is also plural. This is the agreement. मतलब अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वैसे ही हमने वर्ब यूज कर दी, मींस एग्री हो गया। सब्जेक्ट हमारा किससे एग्री हो गया, सब्जेक्ट हमारा किससे एग्री हो गया, वर्ब से एग्री हो गया, मींस हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को मतलब अप्लाई कर दिया इन द इंग्लिश सेंटेंसेस। तो ये ही होता है यूज। अब अगर मान लो किसी क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंगुलर में लेके जाएंगे तो व्हाट विल हैपन हियर। अगर मुझे लिखना है जेनी हमारी क्लास में है तो व्हाट विल हैपन, जेनी क्या है चलेंगे, जेनी इज इन माय क्लास। तो अब हमारा इज जो वर्ब आया है ये एग्री कर रहा है किसको, टू इट्स सब्जेक्ट। तो दैट्स व्हाई दिस बिकम्स, दिस काइंड ऑफ प्रोसेस इज नोन एज, इस तरीके की नॉलेज को ही हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप समझ गए होंगे, मतलब जब सब्जेक्ट हमारा वर्ब से एग्री करे और वर्ब हमारी सब्जेक्ट से एग्री करे, तो दिस इज नोन एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड इट कैन बी आल्सो कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड इन अवर क्लासेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आर यू गॉट इट? वेरी नाइस। इसमें कुछ लिखा हुआ है जैसे बी नोट दैट द वर्ब इन अ सेंटेंस मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। दिस मींस दैट सिंगुलर सब्जेक्ट्स टेक सिंगुलर वर्ब। मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट जो अगर हमारा सिंगुलर है तो वो वर्ब कैसे लेगा, सिंगुलर लेगा। एंड इफ प्लूरल सब्जेक्ट्स दे टेक प्लूरल वर्ब। सो फॉर टुडे in this lesson it's now enough. I need to go in the other classes, so we'll learn tomorrow from onwards. Thank you for watching. Yes, welcome again. Now today we will start from backward. जहाँ से हमने कल को क्लास को फिनिश किया था वहीं से आज शुरू करेंगे। So कल हमने पढ़ के रखा है that subject and verb agreement के बारे में। तो हमने कल पढ़ के रखा था ये that when our verb in a sentence must agree to its सब्जेक्ट, जो भी वर्ब है वो अपने सब्जेक्ट को एग्री करनी चाहिए और जो वर्ब है वो सब्जेक्ट को एग्री करनी चाहिए। इफ वी यूज इन सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब हमारी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। इफ वी आर यूजिंग प्लूरल सब्जेक्ट तो ये होना चाहिए हमारा प्लूरल वर्ब होना चाहिए। नाउ इन दिस वे आई वुड लाइक टू गिव हियर सम एग्जांपल्स बिकॉज़ मेनी एग्जांपल्स आर रिटन इन द बुक। जैसे लिखा हुआ है आई एम एक्साइटेड। The one example here. Hello. Yes, I am excited. Suppose that we are having subject I. So ये हमको अच्छे से पता है. It is well known to all of us that I के साथ हमेशा पर कौन सी की am यूज होती है, right? तो that अगर am ही एग्री कर रही है वर्ब किसको, सब्जेक्ट I को, अगर हमने यहाँ पर कोई दूसरी वर्ब यूज कर दी तो हमारा सेंटेंस कैसा हो जाएगा, इट विल बी रॉन्ग। और अगर हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक पढ़ के रखा है तो हमने पहले ही सीख के रखा है कि सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के अकॉर्डिंग होना चाहिए और वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो यही हमें पहले से सीख लिया होगा तो हमसे कभी गलतियां होंगी नहीं। वी कैन नॉट कमिट एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स इन राइटिंग एनी काइंड ऑफ सेंटेंस। तो ये हमने जब सीख लिया है तो हमसे कोई गलती नहीं होगी। तो ये इस टॉपिक को पढ़ने का फायदा है कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब्स को यूज कर लेना होता है, राइट। अब नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है जैसे यू आर माय पार्टनर, यू आर माय पार्टनर। तो हमारी जो सब्जेक्ट है यहाँ पर कौन सा है, यू है, और यू के साथ हमारी वर्ब कौन यूज होनी चाहिए, आर। तो इसी तरीके से सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे से एग्री कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके की नॉलेज हमने इसमें पढ़नी है। अब हमारे पास जब प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे तो हम लोग प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, राइट। अब अगर बात करें और ज्यादा तो इसमें लिखा हुआ है when two and more subjects are joined by and we use plural verb। जब एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो और दूसरा सब्जेक्ट हो सिंगुलर, अगर ये ज्वाइंट हो एंड से तो हम लोगों को वहां पर कौन सी यूज करनी चाहिए वर्ब, प्लूरल वर्ब यूज करनी चाहिए, प्लूरल वर्ब। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज करनी चाहिए, ओके। नाउ लिखा है when two and more subjects are joined by or not the verb agrees with the final subject। तो फाइनल सब्जेक्ट का मतलब होता है जो बाद वाला सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग यूज करना होता है। जैसे हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं, देखो लिखा हुआ पॉइंट नंबर 30 का when two or more subjects are joined by or। जब कोई भी सब्जेक्ट हो और नॉर से अगर ज्वाइंट है, इन वाले वर्ड से ज्वाइंट है और नॉर से ज्वाइंट है, तो क्या होगा, ये अपने जो भी सब्जेक्ट लिखे होंगे जो सब्जेक्ट ज्वाइंट होंगे तो उनमें फाइनल वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें वर्ब यूज की जाएगी। कैसे, तो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर बाय दिस एग्जांपल। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर नीदर डोना नॉर her sister is here। तो ये हमारा एग्जांपल है। अब हमें
वर्ब फाइनल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करनी होती है। किस केस में? हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, कौन सा है? डोना और हर सिस्टर, इनके बारे में बात हो रही है। लेकिन जब नीदर या नॉर से जुड़ा होगा कोई सेंटेंस तो उसमें हमें फाइनल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। तो हर सिस्टर का इसी है सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पर ये यूज किया गया। अगर हमारा यहाँ पर हर सिस्टर होता है तो क्या हो जाता है? यहाँ पर आर हो जाता है। अगर यहाँ पर सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब जाएगी, और अगर यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वी विल यूज हियर प्लूरल वर्ब। ओके, तो पहले वाला सब्जेक्ट को we need not to focus here, means we will focus we will focus on the final subject। अगर हमारा कोई भी सेंटेंस नॉर और से ज्वाइंट है, राइट। अब देखिए अगर बात करें यहाँ पर लिखा हुआ है we use singular और plural verbs with the collective nouns depending on their use in the sentence। मतलब कोई भी हमारे पास कलेक्टिव नाउन है तो उसको किस सेंस में यूज करना है। अगर हमें सिंगुलर सेंस में यूज करना है पूरा होल ग्रुप में तो हम वर्ब यूज करेंगे सिंगुलर। अगर हमने उसको पार्टिकुलरली यूज किया है तो वर्ब करते हैं यूज प्लूरल। जैसे लिखा हुआ है द ऑडियंस इज लिमिटेड टू 75। अब ऑडियंस इज सीन हियर एज होल, मतलब पूरी ऑडियंस की बात कर रहे हैं। अब दूसरा लिखा है द ऑडियंस आर गेटिंग रेस्टलेस, तो ऑडियंस सीन एज कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल पीपल, मतलब अलग-अलग लोग जो होते हैं उनको सारे जब इकट्ठे हो जाते हैं तब बनती है ऑडियंस। तो ये रहता है वी यूज सिंगुलर वर्ब्स विद द नाउन्स दैट लुक प्लूरल इन फॉर्म बट आर सिमिलर इन मीनिंग। ऐसे जो वर्ब्स होते हैं, जैसे कि कुछ वर्ब्स होते हैं हमारे पास, जैसे न्यूज लिखा है, क्या लिखा हुआ है? न्यूज लिखा है, इट लुक्स लाइक प्लूरल, ये कैसा लगता है? इट लुक्स लाइक प्लूरल सब्जेक्ट, लेकिन हमें इसमें वर्ब कैसे यूज करनी चाहिए? सिंगुलर यूज करनी चाहिए, याद रखिएगा हमेशा वर्ब सिंगुलर हो। मतलब जैसे सब्जेक्ट आपके पास होता है, कौन सा होता है? जैसे फिजिक्स हो गया है, तो ये आपका सब्जेक्ट का नाम है इट लुक्स लाइक प्लूरल, लिखा गया है इट लुक्स लाइक प्लूरल, बट हम लोग ने इसके साथ में वर्ब कौन सी यूज करनी है? मतलब जो सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं ऐसे लिखे होते हैं जैसे लगता है एस लगाया तो दे आर प्लूरल बट दे आर ऑलवेज सिंगुलर, तो इसीलिए वहां पर वर्ब हमें कैसे यूज करनी चाहिए? सिंगुलर यूज करनी चाहिए। जैसे लिखा हुआ है द न्यूज वाज इंटरेस्टिंग, द पेयर ऑफ सीजर्स इज शार्प लिखा हुआ है। We use singular verbs when two subjects joined by end are seen as one unit। जैसे लिखा हुआ है मतलब कोई भी हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट हो और अगर एंड से ज्वाइन हो और पूरे वन यूनिट के तौर पर उनको अगर कन्वे किया गया है, लिखा गया है, तो अब भी हमें वहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब यूज करनी होगी। जैसे लिखा हुआ है टू सब्जेक्ट्स टुगेदर एक्सप्रेस वन सिंगल आइडिया, लिखा हुआ है अगर दो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट हो और एक ही सिंगल आइडिया बताया गया हो उन सब्जेक्ट से रिलेटेड, तब भी हमारा क्या करना होगा? वर्ब सिंगुलर यूज करनी होगी। अगर मान लो दो सब्जेक्ट्स हैं, अलग-अलग अगर आइडिया एक्सप्रेस किया गया तो दो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो वो प्लूरल होंगे, तो वहां पर प्लूरल वर्ब यूज करनी है। लेकिन अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और उनका एक ही आइडिया बताया गया, मतलब उनके बारे में एक ही बात की जा रही है, मतलब बोथ सब्जेक्ट्स आर रिलेटेड टू वन थिंग, मतलब दोनों सब्जेक्ट जब एक ही चीज से रिलेटेड होते हैं तब हमें वहां पर वर्ब जो यूज करनी होती है वो सिंगुलर यूज करनी होती है। जैसे लिखा है सांभर एंड राइस इज हिज फेवरेट फूड, मतलब सांभर और राइस जो है उसकी फेवरेट है, तो मतलब उसकी दोनों ही फेवरेट है, मतलब सांभर और राइस, तो उसके बारे में बात की जा रही है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर सिंगुलर वर्ब। मतलब सब्जेक्ट के बारे में ही रिलेटेड हो या सब्जेक्ट के बारे में एक ही आइडिया हो या दो आइडिया हो, मतलब सब्जेक्ट चाहे दो हो लेकिन अगर एक ही आइडिया है तो वी विल यूज देयर सिंगुलर वर्ब। लिखा हुआ है स्लो एंड स्टेडी बेस द रेस, तो इस तरीके का रहता है। And we use singular verbs with the many indifferent pronouns that are the singular in form and plural in meaning such as each, every, someone, no one, anyone and everyone। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो अपने आप में मीनिंग तो इनका प्लूरल होता है लेकिन इनके साथ हमें हमेशा कौन सी वर्ब यूज करनी चाहिए? सिंगुलर यूज करनी चाहिए, तो इनका इंपॉर्टेंट यूज रहता है। जैसे हम लोगों को दिखता है इट इज ऑलवेज मीनिंग इट इज ऑलवेज प्लूरल इन मीनिंग, बट हमें यूज करनी चाहिए वर्ब सिंगुलर। जैसे लिखा हुआ है हमारे पास ईच लिखा हुआ है, एवरी लिखा हुआ है, हाँ एवरी के बाद क्या लिखा हुआ है? समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन और तो दीज आर द वर्ड्स। इनके साथ में हमें वर्ब्स को ऐसे यूज करनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब यूज करनी चाहिए।
जैसे लिखा हुआ है मतलब लिखा हुआ है जहां पर लिखा है एवरीवन इज प्रेजेंट टुडे, मतलब हर कोई आज प्रेजेंट है। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल पीपल, मींस मीनिंग इज प्लूरल, मतलब सारे लोगों की बात कर रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा बात करते हैं ना तो वो कैसा हो जाता है प्लूरल। बट अगर इन वर्ड्स के साथ में कोई भी सेंटेंस लिखा गया है लाइक ईच, समवन, एनीवन, एवरीवन, एवरी, नोवन, तो इनके साथ में वर्ब कैसे यूज करनी चाहिए हमें? सिंगुलर यूज करनी चाहिए। जैसे लिखा हुआ है एवरीवन इज प्रेजेंट टुडे। अब हम जैसे लिख रहे हैं हर कोई आज पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? एवरीवन क्या हो जाएगा? अगर हर कोई पढ़ रहा है तो क्या लिखेंगे हम? एवरीवन इज रीडिंग। अब हमारे पास वर्ड्स हैं कुछ और हैं, जैसे लिखा हुआ है सम, एनी, ऑलमोस्ट एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, मे बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन देयर यूज इन सेंटेंस। मतलब सम और एनी और ऑल और मोस्ट ऐसे वर्ड्स हैं, अगर हमने इनको किस सेंस में यूज किया है उसके हिसाब से हमें वर्ब यूज करनी होगी। जैसे लिखा हुआ है दे टेक सिंगुलर वर्ब व्हेन दे रेफर टू वन पर्सन, मतलब इन्हीं वर्ड्स को लिख करके अगर हमने एक को रेफर किया हुआ है तो सिंगुलर यूज करेंगे, और इन्हीं वर्ड्स को लिख करके अगर हमारा मीनिंग एक से ज्यादा को लेकर के मींस मोर देन वन, तब हमें वर्ब यूज करनी होगी प्लूरल। तो लिखा हुआ जैसे लिखा है सम ऑफ द वर्क इज पेंडिंग, मतलब कुछ वर्क है वो पेंडिंग में है। अब लिखा है सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, तो जब हमारा सेंस प्लूरल होगा तो हम वर्ब यूज करेंगे प्लूरल, और हमारा अगर सेंस सिंगुलर को लेकर के तो वर्ब यूज करेंगे हम सिंगुलर। जैसे लिखा है ऑल ऑफ द राइस इज ओवर, मतलब सारा का चावल है सब कुछ वो खत्म हो गया। एंड ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स आर वर्क हियर, ऐसे लिखा आर लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। तो इन सब वर्ड्स को देखना है हमें, कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमने अच्छे से स्टडी करना है। नाउ हियर देयर इज एक्सरसाइज इन योर बुक एट पेज नंबर 97, लिखा हुआ है राइट द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स टू सी द गिवन नाउन्स और प्रोनाउंस। ये आपकी बुक है जिसकी हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, एस इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन ऑफ क्लास 6, पब्लिकेशन इज ब्रांड ओरिएंट ब्लैक स्वान। तो पेज नंबर 97 है, इसके आंसर्स आप देख लीजिए। दो जो स्टूडेंट्स हु वांट टू फिल देयर बुक दे कैन फिल। लिखा हुआ पहला क्वेश्चन लिखा है टिमोथी थिंक्स, यहाँ पर आया है टिमोथी थिंक्स क्यों आया? क्योंकि टिमोथी इज हियर व्हाट सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में हम लोग क्या लगाते हैं? यस यस। हमारी जो वर्ब होती है इट इज फाउंड इन प्लूरल फॉर्म। जैसे हमारी जो वर्ब होती है जैसे गो है, ये बेसिक वर्ब है, तो ये अपने आप में प्लूरल वर्ब होती है। जैसे रीड वर्ब हो गई या टीच हो गई, ये सारी प्लूरल वर्ब्स होती हैं। जब हमने इसमें यस या यस ऐड कर देते हैं तो इट बिकम्स सिंगुलर वर्ब। और जब हमारे पास नाउन्स होते हैं, नाउन्स में अगर हम यस या यस ऐड कर देते हैं तो व्हाट दे बिकम? दे बिकम प्लूरल। जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है फोन लिखा हुआ है, अब हमने फोन कर दिया है तो क्या हो गया? मतलब ये कैसा हो गया? प्लूरल हो गया, और ये कैसा था? मतलब जब हम वर्ब में ऐड करते हैं यस और यस तब इट बिकम्स सिंगुलर। अब जब हम नाउन्स में ऐड करते हैं यस या यस तो इट बिकम्स सिंगुलर, प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर, मतलब ये प्लूरल बन जाता है सिंगुलर से। जैसे मान लो लिखा हुआ है पेन लिखा हुआ, अगर हमने यहाँ पेन कर दिया तो मींस वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन, तो इट बिकम्स प्लूरल। मतलब हमें ये याद रखना है नाउन्स क्या होते हैं? थिंग्स नेम, एनीथिंग नेम, मतलब यू कैन से नेम ऑफ एनीथिंग इन दिस वर्ड। जो भी चीजें अवेलेबल है उनके नाम जो होते हैं दे आर नोन एज नाउन्स। तो वो जो नाउन्स होते हैं उनमें अगर ऐसे ऐड करते हैं इट बिकम्स प्लूरल, और वर्ब में जब हम ऐसे ऐड करते हैं तो इट बिकम्स सिंगुलर। नाउ इसमें जो आपका सेकंड क्वेश्चन है लिखा है तारा लिखा है। अब तारा के बाद में I would like to write answers on the board also so that you can feel them. देखिए तारा लिखा है, तारा लिखा है, एक्सरसाइज ए आया आपकी, और डैश है, डैश के बाद ब्रैकेट में हम लोगों ने वर्ब देखा कि गो, तो इसको फिल करना है तारा के अकॉर्डिंग। तो तारा के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या रहता है? वो ही रहता है कि प्लूरल वर्ब चाहिए होती है उस कंडीशन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है लिखा हुआ है सेकंड वाला है
First of all, already we saw in the book. Anna अब डेस के बाद में ब्रैकेट में वर्ब प्ले, तो इसमें क्या वर्ब लिखी जाएगी? प्ले ही रहेगी। क्यों? प्ले वर्ब प्लूरल है और हमारे पास वन सिंगुलर इज इक्वल टू प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट में जो हमारा वर्ब ऐसे ही रहेगी आंसर में प्लूरल, तो प्ले विल बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है नीदर जॉर्ज नॉर आई। अब नीदर और नॉर से जो जुड़े होते हैं उनमें वर्ब कैसी लगती है? सिंगुलर लगती है। अभी हमने देखा नॉर वाले में कैसी वर्ब लगती है? सिंगुलर लगती है। तो देखिए यहां पर नीदर जॉर्ज नॉर आई डैश और हैव लिखा हुआ है, तो क्या होगा? नीदर जॉर्ज नॉर आई। अब यहाँ पर आपने नॉर वाले सेंटेंस में पढ़ के रखा ना, कोई भी नॉर से हो तो वर्ब एग्रीज विद द फाइनल सब्जेक्ट। फाइनल सब्जेक्ट क्या होता है इसका? फाइनल सब्जेक्ट क्या होता है इसका? लास्ट वाला जो सब्जेक्ट होता है। फाइनल सब्जेक्ट कौन सा होगा? मतलब नॉर से जो जुड़े होंगे या और से जुड़े होंगे उनके फाइनल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिक्स करनी है। तो हमारे पास हैव तो है, अब हमारे पास जो फाइनल सब्जेक्ट है यहाँ पर वो कौन सा है? आई। तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा? हैव, क्योंकि अगर हैव जो हम यूज करेंगे तो हैव को यूज की जाती है किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि ये वर्ब कैसी है? सिंगुलर है। हमारी हैज वर्ब कैसी है? इट इज सिंगुलर। तो हैव विल बी आंसर। फाइनल सब्जेक्ट को हमें फोकस करना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है जियोग्राफी। तो क्वेश्चन नंबर 5 जियोग्राफी डैश। अब बी है, बी का मतलब आप लोग जानते हो क्या होता है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ बी? बी मींस एम आर वाज वर वी इट मींस अ लॉट। इतने सारे मीनिंग होते हैं। अगर ये ऑप्शन में दिया गया है आपके बी वर्ड, तो मतलब इन सारे में से कोई एक आंसर हो सकता है, बट द कंडीशन इज हियर नहीं, ये बीइंग है और ये बीन है। बीइंग, तो ये बी जो ऑप्शन वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है? इजमार होता है, बाजवर भी होता है, बीइंग भी होता है, बीन भी होता है। बट द कंडीशन इज अगर हमारा टाइम कैसा यूज किया गया है? प्रेजेंट टाइम अगर यूज किया गया है टेंस में, तो वो उसमें से आपको क्या यूज करना होगा? इनमें से कोई। अगर पास्ट वाला टाइम यूज किया गया है तो इनमें से यूज किया जाता है। तो इन दिस वे वी कैन यूज देम परफेक्टली इन द राइट प्लेस। अब देखिए यहाँ पे लिखा ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी के साथ कौन सा यहाँ पे आएगा? बी है, तो बी के लिए यहाँ पे क्या आएगा? ज्योग्राफी इज कर देते हैं या ज्योग्राफी बाद में कर सकते हैं, तो बोथ राइट, बोथ विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 6 नंबर का, लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ देम, तो क्या हो जाएगा? आर कर लेंगे, मोस्ट ऑफ देम, तो यहाँ पर आर फिल कर देना है। आपका ऑप्शन क्या था? बी। अब लिखा एवरीबॉडी, एवरीबॉडी के साथ क्या आएगा? सिंगुलर नहीं, बांट है, बांट वर्ब में यूज करना है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। एवरीबॉडी डैश और वांट लिखा हुआ है यहाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एवरीबॉडी वांट। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम और फिर डैश लिखा है लाइक। अब इसमें कौन से वर्ब आएंगे?
ईच के साथ, तो ईच के साथ हमने पहले बार क्या लिखा, ईच हो, एवरी हो, समवन हो, नो वन हो, एनीवन हो, एवरीवन हो, तो ऐसे में क्या यूज किया जाता है, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद दीस वर्ड्स। तो क्या आएगा, ईच ऑफ देम इज, यहां पर लाइक है तो वो लाइक्स हो जाएगा, लाइक्स, ठीक, तो लाइक्स विल बी योर आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज बी। लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन के तौर पे लिखा, कंप्लीट दीस सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स। सो टेक पेंसिल इन योर हैंड so that you can feel well. Question number first is solve many kinds of trees grow in this forest. Second वाला लिखा है इडली एंड सांभर। अब आपको पता है जब हम एक ही आइडिया रहता है, एक ही पर्सन से रिलेटेड होता है, तो हमें कौन सा वर्ब यूज करना होता है, सिंगुलर। तो लिखा हुआ है यहाँ पर करना इडली एंड सांभर इज माय फेवरेट। लिखा हुआ है द गर्ल एंड हर पेरेंट्स टू हैव आइसक्रीम। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा द गर्ल एंड हर पेरेंट्स, बंड ही कर दीजिएगा, बिकॉज द गर्ल वन सिंगुलर एंड हर पेरेंट्स वन। नीदर द एडल्ट नॉर द चाइल्ड। अब नॉर वाले में जब जुड़ा होता है सेंटेंस तो हम लोगों की वर्ब कौन नहीं होती है, सिंगुलर, तो लिखिएगा neither the adult nor the child knows what to do. No coffee or sandwiches is available in this time, at this time. Now question number 6, the teacher and her students plan ये रहेगा बिकॉज हमारे पास सब्जेक्ट्स प्लूरल है, टीचर और हर स्टूडेंट्स, प्लान रहेगा। ऑल माय फ्रेंड्स गो ही रहेगा, मतलब ऑल माय फ्रेंड्स मतलब ज्यादा ऑल माय फ्रेंड्स, तो इसमें आप लोग गो करेंगे। नाउ लिखा हुआ है द कमेटी इज करेंगे, कमेटी को क्या लिखेंगे। नाउ आई थिंक एक्सरसाइज बी इज ऑल्सो सॉल्व। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज I will paste a photo in my video also so that you can take that photos as homework। मतलब आपको होमवर्क भी बनते हैं, आपको फोटो डालने के लिखा हुआ है सर्कल द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स दैट एग्री विद द इंडिफरेंट प्रोनाउंस इन दिस सेंटेंस। तो इन क्वेश्चंस को एक्सरसाइज सी एंड डी यू कैन सॉल्व एज होमवर्क। I will give you these photos also in the video. Thank you, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।